السلام علیکم ٹو آل ویورز. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں. اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے ارطغرل تغدقین سے کہتے ہیں جب تک میں گمشتکین کو اپنے جال میں نہ پھنسا لوں تب تک تم اپنے والد اور والدہ کے قاتل کو اپنے خیمے میں ایک رات کے لیے برداشت کر لو. اور وہ غدار عورت جو تمہارے والد کی دوسری بیوی تھی اسے تم مسکرا کر ملنا اور نہ چاہتے ہوئے بھی گمشتکین کی اطاعت کرنا. اور آج رات کو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے اس لیے تم احتیاط کرنا. اتنے میں سنگرتکین وہاں آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ سیلجان خاتون صحیح سلامت قبیلے پہنچ چکی ہیں. پھر تغدقین ارطغرل سے کہتا ہے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ نے ایک دفعہ میری جان بچائی تھی اور آج آپ نے میرے قبیلے کو بھی بچا لیا ہے اور آپ کی مدد میرے لیے بہت انمول ہے. اس کے بعد سنگرتکین کہتا ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ گمشتکین اپنے جرموں کا اعتراف کر لے. اس پر ارطغرل کہتے ہیں اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی جنگ جیتنے کے برابر ہوگا. دوسری طرف قبیلے میں حائمہ خاتون بہت پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں سیلجان آیترن کے سامنے اکیلی ہو گئی ہے اور دوسری طرف بانو چیچک بھی زخمی ہیں. پھر حلیمہ حائمہ خاتون کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو، سنگرتکین بے اور ارطغرل سیلجان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. دوسری طرف سیلجان خوشی خوشی قبیلے میں واپس پہنچ جاتی ہے اور اسی دوران اس کا سامنا گنجگل سے ہو جاتا ہے. سیلجان اس سے کہتی ہے جلد ہی تمہارے دن اس قبیلے میں پورے ہونے والے ہیں اور بہت جلد ہی تم اپنے انجام پر پہنچ جاؤ گی. اس پر گنجگل کہتی ہے تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو. جواب میں سیلجان کہتی ہے تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. دوسری طرف ارطغرل اور تغدقین قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں. پھر تغدقین حائمہ خاتون کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے یہ ہم نے کیا کیا حائمہ خاتون، جن لوگوں پر ہم نے اتنا اعتماد کیا انہوں نے ہی ہمارے ساتھ غداری کی. میرے دل اور آنکھوں کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ نہ دیکھ پائے. اب میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سردار کہہ سکوں، یہاں تک کہ میں اب اپنے آپ کو انسان بھی نہیں کہہ سکتا. یہ دیکھ کر سنگرتکین کہتا ہے اپنے آپ کو سنبھالو تغدقین، اب یہ سب کچھ کر کے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، یہاں تک کہ میں اپنے بیٹے گندگدو سے گنجگل کی شادی کروانے والی تھی اور ان لوگوں نے ہمارے یقین اور بھروسے کو توڑ دیا ہے. اور اگر آج ارطغرل نے ہمارے دلوں اور آنکھوں کو نہیں کھولا ہوتا تو ہماری آج حالت بہت بری ہونی تھی. اب ہمیں انہیں ایک اور دن برداشت کر لینا ہوگا. ارطغرل کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اس اندھیرے سے نکلیں اور انصاف کا نظام قائم کریں. اسی دوران سیلجان آتی ہیں اور حائمہ خاتون اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں اور پھر اس کا حال پوچھتی ہیں. سیلجان کہتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں نے آیترن کے بازو پر کئی قبیلے کا نشان لگا دیا ہے، یعنی کہ اسے زخمی کر دیا ہے. اس کے بعد تغدقین بھی سیلجان سے معافی مانگتا ہے. دوسری طرف آیترن زخمی حالت میں ابھی بھی جنگل میں بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے زخموں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اتنے میں گنجگل وہاں آتی ہے اور آیترن سے پوچھتی ہے کیا ہوا ہے آپ کو. آیترن کہتی ہے میں ان سے ثبوت نہیں حاصل کر سکی اور وہ دونوں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور اب بانو چیچک وہ ثبوت ارطغرل کو دے دے گی اور ہمیں اسے ایسا کرنے سے روکنا ہوگا اور اب سیلجان کو مرنا ہوگا. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمارے لیے اصل مسئلہ تو ارطغرل ہے. گمشتکین کو چاہیے کہ وہ ارطغرل کو جلد سے جلد مار دے. اس پر گنجگل پوچھتی ہے کیا یہ کام آسان ہے. اس پر آیترن کہتی ہے تم یہ مت بھولو کہ تم ایک مارگریو کی بیٹی ہو، ارطغرل ہو یا کوئی اور شخص، لیکن اب وہ گمشتکین سے نہیں بچ سکتا. ابھی ہمیں فوراً جا کر گمشتکین کو یہ سب کچھ بتانا ہوگا. دوسری طرف گندگدو مہمان خانے سے واپس قبیلے میں آ جاتا ہے اور وہ سادتن کی کہی گئی باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. پھر وہ حائمہ خاتون کے خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سادتن کبک نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے اور گمشتکین بے بھی جلد ہی قبیلے میں پہنچنے والے ہیں اور اب وہ مارگریو بن چکے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اچھی طرح سے استقبال کریں. گندگدو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی باتوں کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا. یہ دیکھ کر گندگدو حیران ہو جاتا ہے. پھر حائمہ خاتون اسے بیٹھنے کا کہتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. اس کے بعد گندگدو بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے گنجگل آیترن کے زخموں پر پٹی باندھ رہی ہوتی ہے. آیترن کہتی ہے پہلے بھی ہم نے بہت مشکلوں کا سامنا کیا ہے اور ہم بچ گئے ہیں اور اس مصیبت سے بھی ہم ضرور نکل جائیں گے. پھر وہ گنجگل سے کہتی ہے جب ہم اس راستے پر نکلے تو میں نے اور تمہارے بابا نے تم پر بہت اعتماد کیا ہے، اس لیے تم نے بھی ہمت نہیں ہارنی ہے اور وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہمارے راستے میں آئیں گے اور ان کا نام لینے والا تک کوئی نہیں ہوگا.
दूसरी तरफ गुंदुगदू सबको ऐसे देखकर पूछता है, आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे मंगोलों ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया है। तुगदिकीन कहता है, काश कि ऐसा ही हो जाता। इस पर गुंदुगदू हैरान होकर तुगदिकीन से कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तुगदिकीन कहता है, मुझे अपने वालिद और वालदा की कातिल का पता चल चुका है। सुंगुरदिकीन कहता है, गुंदुगदू भाई, आपको गफलत से जगाने का वक्त आ गया है। फिर गुंदुगदू हैरान होकर पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम लोग क्या कह रहे हो। फिर गुंदुगदू अर्तुगरुल से पूछता है, क्या हो रहा है अर्तुगरुल, क्या तुमने कोई नया काम शुरू कर दिया है। इसके बाद वो सब गुंदुगदू को सारे वाक़ये के बारे में बताते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, इंशाअल्लाह कल गुमुर्सकीन की बारी है। फिर हैमा खातून कहती हैं, बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें ये जानकर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुंजगुल भी इस मामले में मुलव्विस है। फिर गुंदुगदू अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने तुम पर और अपनी बीवी पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और मैं उस मनहूस औरत से शादी करने वाला था। फिर हैमा खातून कहती हैं, अब इन सब बातों का बिल्कुल वक्त नहीं है, हमें चाहिए कि हम इस मसले को जल्द से जल्द ख़त्म करें। फिर गुंदुगदू अर्तुगरुल से कहता है, मेरे प्यारे भाई, अब मुझे क्या करना होगा। अर्तुगरुल कहते हैं, भाई अब आपको कुछ नहीं करना होगा, ये मामला आप मुझ पर और तुगदिकीन पर छोड़ दें। इसके बाद गुंदुगदू कहता है, उन लोगों ने मुझे और तुगदिकीन को धोखा दिया है और वो इसी वजह से मुझे सरदार बनाना चाहते थे। अर्तुगरुल कहते हैं, भाई हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम भी उनके साथ वैसा ही खेल खेलेंगे जैसा उन लोगों ने हमारे साथ खेला है। सुंगुरदिकीन कहता है, इसका मतलब है कि जब मार्ग्रेव हमारे कबीले में आए तो हमें उससे बहुत मुनासिब तरीके से मिलना होगा। इस पर अर्तुगरुल हाँ में सर हिलाते हैं। इसके बाद गुंदुगदू के बाजू में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद सब लोग उसके पास जाते हैं और हैमा खातून कहती हैं, फ़ौरन अर्तुगबे को बुलाओ। दूसरी तरफ गार में बानो चुचक, इब्नुल अरबी और गायतली मौजूद होते हैं और इस दौरान इब्नुल अरबी बानो चुचक और गायतली को इस्लामिक वाक़यात के बारे में बता रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगबे गुंदुगदू के पास पहुंच जाता है और चेकअप करता है और उन्हें बताता है, गुंदुगदू बे, आपको बहुत ज़्यादा बुखार है और आपको सख्त आराम की ज़रूरत है। इसके बाद अर्तुगरुल अर्तुगबे से पूछते हैं, मेरी सोच के मुताबिक गुंदुगदू बे का बाजू बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, लेकिन इस पर अर्तुगबे कोई भी जवाब नहीं देते। फिर गुंदुगदू कहता है, अर्तुगबे ये मेरी फैमिली है और मैं इनसे कोई भी बातें नहीं छुपाना चाहता। फिर अर्तुगबे कहते हैं, गुंदुगदू बे के बाजू पर जो ज़ख्म है वो बहुत बड़ी मुसीबत है और मैंने ऐसा फोड़ा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि एक ही रात में ये इतना बढ़ गया हो कि हड्डी तक पहुंच गया, और अगर हम इसको ठीक ना कर सके तो मैं इसके अंजाम से बहुत खौफज़दा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको साफ़ ना कर सके तो ये खून में शामिल हो सकता है और इससे गुंदुगदू बे की जान भी जा सकती है। लेकिन मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है, हम इसे ज़रूर ठीक कर देंगे और इसके नतीजे में हमें इनका बाजू काटना भी पड़ सकता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये कहकर अर्तुगबे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हैमा खातून सैलजान को दिलासा देते हुए कहती हैं कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गुंदुगदू सैलजान से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद मैं तुमसे नज़रें मिलाने की काबिल भी नहीं हूँ। मुझे इस बात का तो पता है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने आप को माफ़ कर पाऊँगा या नहीं। मैं वो बातें कभी नहीं भूल सकता और वो लड़ाइयाँ जो मैंने तुम्हारे साथ की हैं। सैलजान कहती है, उन लोगों ने आपको इस खेल में फंसाया था, लेकिन मैंने एक दिन के लिए भी आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ी और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मुझसे हमेशा मोहब्बत की है। दूसरी तरफ गुमुर्सकीन कबीले में पहुंच जाता है और उसके साथ सल्जुक रियासत के काफ़ी सारे सिपाही मौजूद होते हैं। कबीले के लोग गुमुर्सकीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और हैमा खातून तुगदिकीन भी उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और दुआन भी पोल के साथ बंधा होता है और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद गुमुर्सकीन उतर कर हैमा खातून के पास आता है और हैमा खातून उसे खुशामदीद कहती हैं और मुबारकबाद देती हैं। इस पर गुमुर्सकीन हैमा खातून का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है। फिर तुगदिकीन भी ना चाहते हुए उसका इस्तकबाल करता है और उसे मुबारकबाद देता है। इसके बाद कबीले के कुछ अहम लोग खैमे के अंदर आ जाते हैं और जिरगे के कुछ लोग भी जमा हो जाते हैं। इसके बाद सल्जुक के 2 सिपाही सोने से भरी एक बोरी अंदर ले आते हैं
गुमुस्तकीन कहता है, अगर आप सब लोग कबूल करें तो मैं आप लोगों को सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। इसको आप रियासत की तरफ से एक तोहफा समझ सकते हैं। इसके बाद वो 2 सिपाही सोने से भरी बोरी गुमुस्तकीन के सामने रख देते हैं। इसके बाद तुगदकीन खड़ा होता है और गुमुस्तकीन का हाथ चूमता है और उसे मुबारकबाद देता है। इसके बाद गुमुस्तकीन उसे एक सोने से भरी पोटली देता है। फिर तुगदकीन वो लेकर बैठ जाता है। इसके बाद हैमा खातून भी गुमुस्तकीन को मुबारकबाद देती हैं और कहती हैं, आज रात मैं आपकी दावत करना चाहती हूँ। गुमुस्तकीन कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ। फिर वो हैमा खातून को भी एक सिक्कों से भरी पोटली देता है। इसी दौरान गुंदुकदू भी वहाँ आ जाता है और सबको सलाम करता है। फिर वो भी गुमुस्तकीन का हाथ चूमता है और उसे मुबारकबाद देता है। फिर गुमुस्तकीन उसे भी एक सोने से भरी पोटली देता है और उसे कहता है, ये अपने सिपाहियों के साथ बांट लेना। इसके बाद सुंगुरतकीन भी खड़ा होता है और गुमुस्तकीन का हाथ चूमता है। गुमुस्तकीन कहता है, आपने एक बार फिर रियासत के साथ अपनी मोहब्बत को साबित किया है। फिर सुंगुरतकीन वो सोने की पोटली लेकर कहता है, मैं ये सोने के सिक्के शहीदों के बच्चों के साथ बांटूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल की बारी आती है और अर्तुगरुल उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अब हमने रियासत का मेहरबान चेहरा देख लिया है और अब हम रियासत का इंसाफ देखेंगे और हर किसी को इंसाफ का सामना करना होगा। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से चले जाते हैं। फिर तुगदकीन गुमुस्तकीन से कहता है, अर्तुगरुल जब भी इंसाफ की बात करता है वो सारे अमन को ख़राब कर देता है। इसके बाद अर्तुगबे उठकर गुमुस्तकीन का हाथ चूमते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं और गुमुस्तकीन उसे भी सोने के सिक्कों से भरी पोटली देता है। अर्तुगबे कहते हैं, मैं इन सिक्कों को ज़रूरतमंद के साथ बांटूंगा। इसके बाद सब जिरगे के लोग बारी बारी से आकर गुमुस्तकीन का हाथ चूमते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ बामसी और तुर्गुत पानी लेकर दुआन के पास जाते हैं, लेकिन सिपाही उन्हें वहां रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ, इनके पास कोई नहीं जा सकता। बामसी कहता है, भाई लेकिन हम इसे पानी पिलाकर यहाँ से चले जाएंगे। इतने में गुमुस्तकीन वहाँ आ जाता है और सिपाही से पूछता है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तुर्गुत कहता है, गुमुस्तकीन बे, अगर आप इजाज़त दें तो हम दुआन को पानी पिलाना चाहते हैं। इस पर गुमुस्तकीन गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम एक सजाई याफ्ता मुजरिम को पानी पिलाना चाहते हो। इसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इन लोगों को फ़ौरन यहाँ से हटा दो। इसके बाद वो सिपाही उन दोनों को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तब बामसी कहता है, रुक जाओ भाई, ये पानी लो और उसे पिला दो, वो बहुत प्यासा होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर सिपाही पानी का बर्तन दुआन के पास रख देता है और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है।